ہم یسوع مسیح زمان حال میں یسوع مسیح حال میں کس طور پر ہماری ضرورت ہے یہ ہمیں جاننا ہوگا۔ یسوع مسیح نے کبھی یہ نہیں اس کے حق میں یہ نہیں کہا ہی ووز، بلکہ کیا کہا گیا ہے اس کے حق پہ؟ میں ہوں۔ آمین۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ یہ ضرور کہا گیا میں مر گیا تھا، زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ پھر کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے۔ آمین۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اب کس طریقے کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو جاننا ضرور ہے۔ اور پچھلی دفعہ میں نے آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بتایا کہ آئی ایم کو یعنی میں ہوں کو خداوند نے کس طریقے کے ساتھ موسیٰ کے اوپر ظاہر کیا ہے، اور پھر خدا نے اپنے آپ کو مختلف جگہوں کے اوپر بتایا کہ میں ہوں۔ آمین۔ اور میں نے یہ بھی بتایا آپ کو آئی ایم جب آپ کہتے ہیں، جب میں ہوں کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد آپ کیا لیتے ہیں؟ اس سے یا اس کا روٹ جو عبرانی لفظ ہے وہ یاوے ہے، یعنی یہوہ جسے ہم کہتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ یہوہ کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آئی ایم۔ آمین۔ میں ہوں۔ اور آئی ایم بائبل مقدس میں خاص طور پر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جس میں ذکر آیا ہے، جو پہلی دفعہ جو بات سید کے دنوں میں ہوئی ہے، لیکن ابراہیم نے آئی ایم کو میں ہوں کو اس طور پر جانا کہ خدا کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ آمین۔ چنانچہ اس نے یہ مکاشفہ اس کی زندگی میں کھلا کہ خدا کیا ہے؟ میں ہوں جو مہیا کرتا ہے اور دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طریقے کے ساتھ آگے چل کر آپ کو یہوہ نسی کا جو خداوند میرا جھنڈا، یہوہ شالوم، یہوہ قادش، یہوہ رافع، تو یہ سارے نام جو آپ کو پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتائے تھے وہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ آپ کو اپنے خدا کے نام کی پوری انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ جب آپ خدا کو جانتے ہیں یا جانیں گے تو آپ ٹھیک طریقے کے ساتھ اس کی پرستش، اس کی ستائش اور اس کی حمد کرنے والے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اس کے نام کو نہیں جانتے یا نہیں سمجھتے تو پھر آپ اس کی تعریف اور تمجید اور پرستش خاص طور پر نہیں کر پائیں گے۔ آمین۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ میں نے یہ بھی بتایا کہ جب ہم یہوہ کی بات کرتے ہیں تو یہ سارے نام کرائسٹ میں ہمیں ظاہر ہوتے ہیں۔ آمین۔ اور اب یہ دیکھیے کہ خدا جو ہے وہ جھاڑی میں اترا، اور لاسٹ ٹائم میں نے بتایا کہ یسوع مسیح زمین کے اوپر جب اس کا تجسم ہوا تو یسایہ اسے کیا کہتا ہے کہ اس کے آگے کومپل کی طرح خوش زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے۔ وہ لکھا ہے آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک و رنج کا آشنا ہوا۔ اور فلپیوں کے خط کے اندر جیسا کہ ذکر آیا ہے کہ وہ انسان کے مشابہ ہو گیا، اسے آدمی کی شکل اختیار کی اور پست ہو گیا، اور پھر اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کر دی۔ آمین۔ اور آج آپ کو واضح طور پر نیو ٹیسٹمنٹ میں جو ہے یہ ملے گا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کیا ہے؟ آئی ایم ہے۔ کرائسٹ از دا آئی ایم۔ ٹھیک ہے۔ مسیح کیا ہے؟ وہ میں ہوں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہم نے تو پیچھے بتایا کہ میں نے بتایا کہ جب آپ یہوہ یری کہتے ہیں تو آپ کو جو ہے ملے گا کہ یسوع مسیح ہماری نیڈز کو وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو ہے اس کا ذکر ملتا ہے خداوند کا۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ یوحنا کی انجیل میں جو ہے کس طریقے کے ساتھ خداوند کو جو ہے وہ آئی ایم کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے کہ مسیح کون ہے؟ بولیے آئی ایم ہے، یعنی میں ہوں۔ آمین۔
चुनाचे जब आप मैं हूं की बात करते हैं तो इससे क्या मुराद ली जाती है, बोलिए? यहोवा। ठीक है, यानी इसका रूट क्या निकलेगा? यहोवा। आमीन। चुनाचे जब आप जो है नए अहदनामा में यीशु मसीह की बाबत पढ़ेंगे या सुनेंगे या आप जो है वो स्टडी करते हैं तो इससे क्या मतलब लेता है, निकलता है कि मैं हूं, इसका मतलब है यीशु मसीह क्या है? यहोवा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप ये देखिए कि मत्ती रसूल ने की जो अंजील है वो किसके लिए लिखी गई है? वो यहूदियों के लिए लिखी गई, लेकिन कई दफ़ा ये तवक्को की जाती है रही है कि मत्ती रसूल जो है वो मसीह जो है यहोवा आई एम को वाज़िया तौर पर बयान करता, लेकिन खुदावन होली स्पिरिट ने यह है यूहन्ना का चुनाव किया कि वो खुदावन यीशु मसीह की जो अलूहियत है, ठीक है, उसकी डीटी है, वो उसको बयान करे। और इसकी बड़ी वजह क्या है कि वो खुदावन यीशु मसीह से मोहब्बत रखता था। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और ये उसको शर्फ मिला। तो जो खुदावन यीशु मसीह के साथ मोहब्बत करते हैं, उससे प्यार करते हैं और उसके साथ जुड़े रहते हैं, खुदा का मुकाशफा, खुदावन का नाम, खुदावन की अलूहियत जो है उसकी इलाही ज़ात उसके ऊपर खुलती है। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह की जो शख्सियत है, यीशु मसीह की डीटी जिसे हम कहते हैं, यीशु मसीह की अलूहियत जो है वो यूहन्ना रसूल ने साबित की है। जब आप यूहन्ना की अंजील पढ़ेंगे, आज मैं यूहन्ना की अंजील में से आपकी जो है वो मदद करूंगा कि यीशु मसीह को उसने किस तरीके के साथ जो है वो बताया और साबित किया, प्रूव किया कि वो कौन है? मैं हूं। आमीन। चलो आप ये देखिए कि किस तरीके के साथ उसकी अपनी ये गवाही और उसके लिखने का जो उसका मकसद था, उसने खुद इस बात की गवाही दी है कि जितने मोजज़ात जो है लिखे गए हैं, लिखा कि वो इतने ज़्यादा हैं कि वो उसका किताबें जो है वो काम पड़ जाती, ये उसने इसका जिक्र किया है। लेकिन आप पढ़िए यूहन्ना की इंजील, उसका 20वां बाब, उसकी 30वीं और 31वीं आयत में वो यूं बयान करता है। आज आपको कुछ हवाले पढ़ने पड़ेंगे, मैं पढ़ूंगा, ये तो मैं पढ़ूंगा। और यीशु ने और बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से क्या करो? जिंदगी पाओ। आमीन। चलो आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको यूहन्ना ने आई एम को, जो खुदा का बेटा है यीशु मसीह, उसने क्या कहा? ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम ईमान लाओ कि यीशु मसीह, यीशु ही क्या है? खुदा का बेटा मसीह है, यानी खुदा का बेटा मसीह है। चुनांचे जब आप मसीह की बात करेंगे, क्राइस्ट की बात करेंगे, तो यहूदियों के नज़दीक जब मसीह है वो कौन है? खुदा का बेटा है। और इसलिए आप ये पढ़ते हैं कि क्या तू खुदा का स्तुदा है, यानी मसीह है, तो तू क्यों जो है हमारे जो है वो हमसे सीधी बात नहीं करता? चुनांचे आप ये देखिए कि उनको इल्म है कि खुदा का बेटा कौन है? मसीह। चुनांचे ये बात यूहन्ना ने साबित की है कि, और उसकी अपनी गवाही कि ये इस बात इससे लिखी है कि तुम ईमान लाओ कि यीशु क्या है? यीशु ही खुदा का बेटा, बोलिए कौन है? मसीह है। आमीन। और ईमान लाकर क्या करो? उसके नाम से जिंदगी पाओ। जब यूहन्ना ने जो है एक बड़े थियोलॉजियन के तौर पर जो है यूहन्ना की इंजील में जो है वो इस बात को, उसकी अलूहियत को साबित किया है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात है जो यूहन्ना ने अपनी इंजील के अंदर ये बयान किया है। अगर एक जगह के ऊपर आपको थियोलॉजियन यानी माहिर इलाहियात नज़र आता है, लेकिन दूसरी तरफ आपको वो एवेंजलिस्ट के तौर पर भी नज़र आता है, एक मुबशर के तौर पर उसने जो है ये गवाहियाँ पेश की हैं कि यीशु मसीह जो है वो कौन है? खुदा का बेटा है। और उसने अपनी इंजील में इस बात को
प्रूफ किया है, साबित किया है कि मेरी ही ये गवाही नहीं है कि ये बातें इसलिए लिखी गई हैं कि तुम ईमान लाओ कि यीशु खुदा का क्या है, बोलिए, बेटा, खुदा का बेटा मसीह है। आमीन। ताकि तुम ईमान लाकर जो है वो हमेशा की जिंदगी पाओ। लेकिन इसके साथ साथ उसने जो है दूसरों की गवाहियों को भी हाईलाइट किया है, ताकि लोग जो है वो जान जाएं कि सिर्फ यूहन्ना ही की बात नहीं है, बल्कि दीगर लोग भी जो है वो इसके बारे में ये राय रखते हैं कि यीशु मसीह कौन है, खुदा का बेटा है और खुदावंद है और उसकी प्रस्तुति हुई है। प्रेज द लॉर्ड। उसे 7 गवाह पेश किए अपनी अंजील में कि यीशु मसीह कौन है, बोलिए, खुदा का बेटा है। प्रेज द लॉर्ड। चाहिए आपको इन बातों की समझ होना चाहिए, ताकि आपके अंदर ये बात खुल जाए कि जब आप आई एम को, यानी मैं हूं को मुखातिब करती हैं, तो आपको इल्म हो कि ये लोग, इन लोगों ने मुखातिब किया और उन्होंने जान लिया कि यीशु ही कौन है, खुदा का बेटा मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। और आप ये देखिए कि जो उसने पहली गवाही आपने जो है अंजील के अंदर बयान की है, आपको यूहन्ना 1:34 में मिलेगी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा है? चिनाचे मैंने देखा और गवाही दी है कि ये खुदा का बेटा है। प्रेज द लॉर्ड। उसने क्या कहा है? मैंने देखा है और चिनाचे मैंने देखा और गवाही दी है कि ये खुदा का बेटा है। चनाची इस गवाही से जो है हमें जो है तकवीयत मिलती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले या खुद ये गवाही दे रहा है कि यीशु मसीह कौन है, बोलिए, खुदा का बेटा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप जब यूहन्ना 1:49 में पढ़ेंगे, ठीक है, पहला बाप उसकी 49वीं आयत में पढ़े, नतनेल के हवाले से ये बात आई है। नतनेल ने उसको जवाब दिया, यीशु मसीह को जवाब दिया, कहा, ए रब्बी, तू खुदा का बेटा है। आमीन। ये सेकंड जो विटनेस है, तू इस्राएल का बादशाह है। चनाची आप ये देखिए कि कौन पहली गवाही जो यूहन्ना ने बयान की है, वो किसकी है, बोलिए, यूहन्ना, बोलिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा? चनाचे मैंने देखा और गवाही दी है कि ये कौन है? नतनेल ने क्या गवाही दी है? ए रब्बी, बोलिए, क्या बोला? ए रब्बी। ये कौन कहता है, बोलिए? नतनेल ये बयान करता है कि यीशु कौन है? खुदा का बेटा है। और फिर आप जो है सामरियों से पूछें, वो सामरी 4 बाप और उसकी 42वीं आयत में इस बात का वो जिक्र करते हैं और वो ये बयान करते हैं, कहते हैं, और उस औरत से कहा, यानी सामरी औरत से जो है वो एक बड़ी भीड़ ने, और सामरियों ने उनसे कहा, क्या कहा? अब हम तेरे कहने ही से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं कि ये फिल हकीकत दुनिया का क्या है, बोलिए, मुनज्जी है। आमीन। चनाची ये सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही नहीं है, नतनेल की गवाही नहीं है, ये सामरियों की गवाही है। आमीन। सामरियों ने की, ये क्या कहा है? उस सामरी औरत से, ठीक है, जिसके गुनाह को यीशु मसीह ने हाईलाइट किया है, और उसकी बात से के कहने के ऊपर ईमान नहीं लाए, बल्कि उसने कहा हमने देख लिया है और तेरे कहने से हम ईमान नहीं लाते हैं, क्योंकि हमने खुद सुन लिया, इन्होंने सुना और जानते हैं कि ये फिल हकीकत दुनिया का क्या है, बोलिए, मुनज्जी है। तो ये तीसरी गवाही आप जो है यूहन्ना ने ये बयान की है कि यीशु की जो अलूहियत है वो क्या है? वो खुदा का बेटा है, जिसे हम क्या कहते हैं? आई एम कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। फिर पतरस जो है वो पतरस के बारे में उसने गवाही को शेयर किया, जब आप 6 बाप और उसकी 69th वर्स पढ़ते हैं और कहते हैं, और हम ईमान लाए, ये पतरस कहता है, और हम ईमान लाए और जानेंगे कि खुदा का कदूस तू ही है। आमीन। तो ये पतरस ने बयान किया है। पतरस ने क्या बयान किया है, बोलिए? या आपको समझ आई है? चल बताइए। और हम ईमान लाए और जान गए कि खुदा का कदूस तू ही है। फिर अब बोलिए, तो इस पतरस की क्या गवाही है? खुदा का कदूस तू ही है।
चुनाचे आप ये देखिए, ये पतरस से जो है इसकी गवाही देता है। और जो है 2 हफ्ते पहले मैं इसका जिक्र किया, अंधा बुखारी जब वो क्या कहता था, 9वां बाप उसकी 38 आयत में कहता है, जब यीशु मसीह ने कहा क्या तू खुदा के बेटे को जानता है, उसने कहा तू कौन है, क्या तू उसके ऊपर ईमान लाता है, उसने कहा जो तुझसे बातें करे वही है। तो उसने कहा ऐ खुदावन मैं ईमान लाता हूं, आमीन। और उसे क्या किया, सजदा किया। प्रेज द लॉर्ड। चलिए आप ये देखिए कि ये 5वीं गवाही है जो यूहन्ना अपनी इंजील में इस बात का जिक्र कर रहा है। हमें दीगर बातों की बात की तरफ तवज्जो देने की जरूरत नहीं। दूसरा तीसरा क्या कहता है बाइबल मुकद्दस में, जिन्होंने इस बात यीशु मसीह को देखा है, यीशु मसीह को सुना है, वो बयान कर रहे हैं कि यीशु मसीह कौन है, बोलिए खुदा का कदूस है, खुदा का बेटा है, ठीक है, और उसे सजदा कर रहे हैं, आमीन। और फिर मरथा की गवाही है, ये छठी गवाही है, वो 11वां बाब उसकी 27वीं आयत में इस बात का जिक्र है। उसने उसे कहा हाँ खुदावन, क्या उसने कहा, हाँ खुदावन मैं ईमान ला चुकी हूं कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है, आमीन। तो ये मरथा की गवाही है, गवाही है। आप बेशक कहते होंगे कि ये बातें हमने सुनी होंगी हैं, लेकिन आपको ये जानना होगा इन गवाहियों को मद्देनजर रखकर या अपने सामने रखकर आपने अपना मुशाहदा करना है कि आप खुदा के बेटे मसीह को किस अंदाज के साथ जब वो देख रहे हैं, आपका ईमान आपको किस तरफ लेकर चल रहा है। मरथा कहती है हाँ खुदावन मैं ईमान ला चुकी हूं कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। प्रेज द लॉर्ड। चाचे ये गवाहियां हैं जो उसने पेश की, उसने अपनी गवाही पेश की, फिर उसने ये 7 जो है गवाह पेश किए कि यीशु मसीह कौन है, बोलिए खुदा का बेटा है। और फिर आखिरी बात जो तुमा के जरिए से या यूहन्ना रसूल ने गवाही दी है, आपको मालूम है जब यीशु मसीह ने अपने हाथ दिखाए तो तुमा ने क्या कहा, तो तुमा ने जवाब में से कहा ऐ मेरे खुदावन, और कहा ऐ मेरे खुदा। प्रेज द लॉर्ड। ऐ मेरे खुदावंद। और फिर क्या कहने लगा, चलो आप ये देखिए कि आपके मुंह से जो है निकलेगा, ये बातें ये निकलेंगी कि जब आप खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं, जब आप मसीह को जानते हैं, तो फिर तुम की तरह आपके मुंह से एकदम से निकलेगा ऐ खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। प्रेज द लॉर्ड। चाची देखिए कि ये बातें जो है आपको अंजील के अंदर इस अंदाज के साथ मिलेंगी। फिर यीशु मसीह ने खुद, ठीक है, यीशु मसीह ने खुद जो है मैं हूं के साथ इस बात का ऐलान किया कि वो खुदा का बेटा है। प्रेज द लॉर्ड। जिसे आसमानी बाप ने क्या किया है, भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। बढ़िए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाप उसकी 24वीं आयत से। पढ़िए। आगे वाले का यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे, क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदम जात है। इससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे, जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। प्रेज द लॉर्ड। अब 10वां बाप उसकी 22वीं आयत से ऑनवर्ड जब आप पढ़ेंगे तो क्राइस्ट वो बयान करता है। यरूशलेम में ईद तजदीद हुई और जाड़े का मौसम था और यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदा में टहल रहा था। बस यहूदियों ने उसके गिर्द जमा होकर उससे कहा,
तू कब तक हमारे दिल को डामाडोल रखेगा? अगर तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया, मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह है, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ, और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी, और कोई नहीं मेरे हाथ से, और कोई उन्हें हवा की वजह से ना, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप एक हैं। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बथेरे अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं, इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम खुदा हो? जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम आया, और किताब मुकद्दस का बातिल होना मुमकिन नहीं। आया तुम उस शख्स से जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा कहते हो कि तू कुफर बकता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं खुदा का बेटा हूँ। अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन ना करो, लेकिन अगर मैं करता हूँ तो वो मेरा यकीन ना करो, मगर उन कामों का तो यकीन करो, ताकि तुम जानो और समझो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में। आमीन। अभी देखिए कि ये यीशु मसीह की स्टेटमेंट्स हैं। यीशु मसीह ने खुद कहा है, यीशु मसीह ने इसको बयान किया है कि मैं क्या हूँ? मैं बाप में हूँ, मैं और मेरा बाप एक है। आमीन। और ये तुम कहते हो कि कुफर बकता है, इसलिए कि मैंने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ। अजीज बहनों भाइयों, ये क्राइस्ट की स्टेटमेंट है कि मुझे बाप ने भेजा है, और मैं और बाप क्या हैं? वो एक हैं। सिर्फ यही नहीं, आप देखेंगे कि यूहन्ना ने ऐसी चंद बातों को, चंद वर्सेस जो है आपके सामने रखना चाहूँगा, जिससे आप जो बाइबल के स्टूडेंट्स हैं, और स्पेशली जो गॉस्पेल जॉन के ऊपर तहकीक करते हैं, वो इसको थियोलॉजिकली या लॉर्डेड कहते हैं कि ये वर्सेस जो हैं ये थियोलॉजी से भरी हुई हैं, जिसको हमें समझना और जानना, और हर एक ईमानदार को ये जानने की बहुत ज़रूरत है। आमीन। जब आप जो है वो पढ़ेंगे यह यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 26वीं आयत, वहाँ पर जिक्र है, यीशु ने उससे कहा मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। हाँ, मैं तुझसे बोल रहा है वही हूँ। यह सामरी औरत से ये मुखातिब होकर उसने कहा है। जिसने उससे कहा मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ कौन? वही हूँ। और फिर जब आप जो है पढ़ेंगे जो है 8वां बाब उसकी 24वीं 28वीं 58 आयत, तो वहाँ पर भी आपको जो है वो चीज़ें नज़र आएंगी, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये बातें, ये वर्सेस मैं इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आपको मालूम हो कि अनाजीर इस बात को साबित करती हैं और बयान करती हैं कि यीशु मसीह कौन है? खुदा का बेटा है। और फिर जब आप उसे आई एम कहते हैं, जब आप उसे मैं हूं को पुकारते हैं, उससे दुआ करते हैं, तो आपको बड़ा ईमान हो कि मैं यह अपने खुदा से बात कर रहा हूं। आमीन। और फिर आप 24वीं आयत पढ़े 8वें बाब की, तो वहां पर लिखा है इसलिए मैंने तुमसे यह कहा कि अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूं तो अपने गुनाहों में मरोगे। आमीन। बात समझ आई है? चले फिर से सुनिए। इसलिए मैंने तुमसे ये कहा कि अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूं तो अपने गुनाहों में मरोगे। फिर 28वीं आयत में लिखा है बस यीशु ने कहा
کہ جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں. آمین. اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں. تو چنانچہ جو ہے یسوع مسیح بار بار یہ بات کو بتا رہا ہے میں وہی ہوں. پریز دی لارڈ. اور پھر آپ 58 آیت میں پڑھے یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں. ہاللیلویا. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے کے ساتھ کرائسٹ یہ بیان کر رہا ہے. تو یہ کیا سامریوں سے اس طور پر نہیں بات کر رہا ہے کہ میں ہوں جو تجھ سے باتیں کر رہا. میں ہوں یعنی جب میں کر رہا ہوں میں ہوں کا مطلب ہے آئی ایم تجھ سے باتیں کر رہا ہے. چنانچہ سامریوں سے کون باتیں کر رہا تھا؟ میں ہوں بات کر رہا تھا. اور پھر اس نے یہودیوں کو کیا آگاہی بخشی، کیا تنبیہ کیا تھا، کس وجہ سے تنبیہ کر رہا تھا، اس کو کس بات کے اوپر تنبیہ کر رہا تھا؟ وہ یہ تنبیہ کر رہا تھا کہ اگر تم نے میں ہوں پر ایمان نہ رکھا تو تم اپنے گناہوں میں کیا کرو گے؟ مرو گے. لہذا اگر کوئی شخص اپنے گناہوں میں مرتا ہے تو اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میں ہوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. لہذا چونکہ ہم کرائسٹ کو جو اس کی مصلوبیت جو اونچے پر چڑھایا گیا ہے ہم چونکہ اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں اس لیے اپنے گناہوں سے بچ کر ہمیشہ کی زندگی کا اعلان کرتے ہیں. آمین. پریز دی لارڈ. چاچا یہ باتیں جو کرائسٹ نے خود اس بات کا اعلان کیا ہے ہمیں یوحنا کی انجیل میں جب ملیں گی. اس لیے جب آپ انٹرنیشنلی بھی ایونجلزم جب کیا جاتا ہے اور ایونجلزم کرتے وقت جو سب سے پہلی بات جو ہے ایک بلیور کو جو مسیح کو نئے طور پر قبول کرتا ہے یعنی اس مسیح کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے، پتہ ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ اس کو تحفتاً گفٹ کیا دیا جاتا ہے؟ اسے یوحنا کی انجیل دی جاتی ہے تاکہ وہ یوحنا کی انجیل کو پڑھے. آمین. کیونکہ یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح کو جو خدا کا بیٹا ہونا اور پھر یسوع مسیح جو میں ہوں کی وضاحت کی گئی ہے. پریز دی لارڈ. اور آپ کو جو ہے اس یوحنا کی انجیل میں جو کی ورڈ آپ کو ملے گا وہ معلوم ہے کون سا کی ورڈ؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی یہ کی ورڈ سے ہے. لیکن کی ورڈ جو ہے آپ کو جو ہے اس میں ملے گا میں ہوں بھی ہے. اس کی ورڈ جو آپ کو اس انجیل کے اندر ملے گا اور وہ ہے ہمیشہ کی زندگی. آمین. یعنی یہ کی ورڈ ہے مرکزی جو لفظ آپ کو جو ہے یوحنا کی انجیل میں ملے گا وہ کیا ہے؟ 13 مرتبہ یا کم سے کم 13 مرتبہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی اٹرنل لائف کے اوپر یہ ملے گا. اور 7 بار تو آپ کو معلوم ہے میں ہوں کا یسوع مسیح نے اس کا ذکر کیا جس کو میں آگے پیش کروں گا. آمین. اگلی دفعہ سے باقاعدہ طور پر آئی ایم جو ہے جو یسوع مسیح نے دعوے کیے ہیں، جس یسوع مسیح نے اس کو دعویٰ نہیں کہوں گا بلکہ یسوع مسیح ہے اس نے اس کو بیان کیا ہے وہ اس کے اوپر میں ٹیچنگ آپ کو دوں گا. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ 13 مرتبہ ہمیشہ کی زندگی کا اعلان جو ہے وہ ہوا ہے یوحنا کی انجیل میں. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ گواہیوں کے اوپر دیکھیے یوحنا کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے. کرائسٹ اس کے اوپر بات کر رہا ہے کہ جو ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو لکھا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ جو اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے بولیے کیا ہے؟ چنانچہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے یوحنا کی انجیل میں کا مرکزی لفظ ہے جس کے اوپر جو ہے بار بار آپ کو یہ ملے گا. اور پھر مزید کے آئی ایم کے بیان یہ سب یوحنا کی انجیل میں آپ کو نظر آتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں یسوع مسیح میں روحانی زندگی کے جو ہے تعلق کو جان سکتے ہیں. آمین. اور آپ دیکھیے کہ کرائسٹ نے جو ہے ان باتوں کا ذکر کیا ہے کہ زندگی کی روٹی کیا ہے؟ میں ہوں. ٹھیک ہے. اور 8:12 کے مطابق اس نے کیا کہا ہے؟ زندگی کا نور. ٹھیک ہے. دنیا کا نور میں ہوں، زندگی کا نور ہے. چنانچہ کلام کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ سیر ہوتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں اور اس کی زندگی میں
उस वादे को जो उसने जो है हमारे साथ हमेशा की जिंदगी का किया है, जो है उसको क्या करते हैं, वो जानते हैं। आमीन। तो ये बातें जो भी मैं आपको सामने ये हाईलाइट बताता हूं, इसके ऊपर हम आगे चलकर बात करेंगे। फिर वो क्या है, वो भेड़ों का दरवाजा है। इसके जरिए से हम अंदर और बाहर जाते हैं और आज़ादी के साथ हमेशा की जिंदगी को लुत्फ अंदोज करते हैं। दरअसल ये बात है, जब कहा जाता है कि दरवाज़ा मैं हूं, तो दरअसल हम जो है आज़ादी के साथ क्या करते हैं, हमेशा की जिंदगी को एंजॉय करते हैं। जब आप दरवाज़ा कर यानी हमारा आना जाना जो है अंदर और बाहर होना, ये इस बात इससे क्या कर रहे हैं, हम उसकी ज़िंदगी को जो उसने हमें दी है, हम उसको लुत्फ़ अंदोज़ करते हैं। और जब यीशु मसीह ने कहा, मार्था को कहा क्या मौत और ज़िंदगी मैं हूँ, ठीक है, और शागिर्दों को क्या कहा, ठीक है, राह हक और ज़िंदगी तो मैं हूँ। तो ये आपको सारी बातें यूहन्ना की अंजील के अंदर मिलेगी। और फिर यीशु मसीह का अंगूर का हकीकी दरख्त मैं, और हम क्या हैं, डालियां हैं। चाचा हम उसमें जब पेवस्त रहती हैं तो फिर क्या करते हैं, उसके जिलाल के लिए फलदार जो है वो होते हैं। तो ये सारी बातें जो आपको जो है अंजील के अंदर मिलती हैं, जो इस बात की यह दलील है कि यीशु मसीह कौन है, खुदा का बेटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का बेटा मसीह है। सो मसीह को जानने के लिए जब तक आपके पास आई एम की पूरी तालीम नहीं है, आप उसके साथ मुखातब नहीं हो पा रहे सही तौर पर। बिलीवर है, हाँ बेशक आप मसीह के ऊपर जो है बिलीव कर चुके और उसकी निजात के ऊपर बिलीव कर चुके हैं, लेकिन हमें उसकी पूरी शख्सियत को जानना बहुत ज़रूरी है। हमें जो क्राइस्ट के पूरे नॉलेज को जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर लेना ज़रूर है। उस और नाम जो है उसकी पूरी शख्सियत का बयान है। आमीन। और ये आपकी मदद करेगा कि किस तरीके के साथ आपको मूव करना है। आमीन। और आई एम के जरिए से खुदावन ये बताना चाह रहा है कि मैं आपके लिए क्या हूं, ठीक है, और मैं अपनी कुदरत के साथ आपके लिए क्या कर सकता हूं। आमीन। और फिर हम उसके लिए उसके जरिए से क्या कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि क्या है, वो हमारे लिए क्या है और वो हमारे लिए क्या कर सकता है, और फिर हम उसकी कुदरत के जरिए से क्या कर सकते हैं जमीन के ऊपर। वो इस आया में पिनाहा है, इसको जानने में, इससे समझने में पिनाहा है। इसलिए जरूरी है कि आप इसको जो है बड़ी संजीदगी के साथ लें और इसको समझें, इसे जानें। और मैं आपको ये उभारूंगा कि आप यूहन्ना की अंजील को क्या करें, पढ़ें। इसको है वो 1 दफा 2 दफा 3 दफा 4 दफा, और बल्कि मैं कहूंगा बार बार पढ़ें। आपको पता चलेगा कि क्राइस्ट की तालीम आपको मिलेगी। आप यूहन्ना की अंजील का 17वां बाब पढ़िए, आपको मालूम पड़ेगा कि क्राइस्ट कौन है, ठीक है। और इससे आपको मालूम पड़ेगा कि खुदावन को मैं किस तरीके के साथ जान सकता हूं और समझ सकता हूं। आमीन। अगर याद रखिए, अगर आप रूहानी तौर पर भूखे हैं तो वो आपके लिए जो है वो जिंदगी की रोटी बनकर आपको वो असुदा करेगा। अगर कोई अंधेरे में पड़ा हुआ है, वो उसके लिए क्या हो सकता है, रोशनी बनकर, जिंदगी का नूर बनकर जो है उसको के अंदर, जो गुनाह के अंदर वो पड़े हुए हैं, यीशु मसीह जो है वो जिंदगी का नूर बनकर उसकी जिंदगी के अंदर आ सकता है। अगर किसी शख्स को जो है वो मौत का खौफ है और वो मौत से डरता है और वो इस बात का ऐलान करता है कि क़यामत और जिंदगी क्या है, वह मैं हूं। चाहे अगर कोई शख्स यह इस बात के लिए अश्योरिटी नहीं रखता है, अश्योर नहीं है, इस बात के लिए अश्योर नहीं, क्या मैं आसमान पर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, किसके जरिए से जाऊंगा। और उसने शागिर्दों को क्या कहा, राह और हक और जिंदगी तो मैं हूं। चाचे आप ये देखिए कि अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर उसके जलाल के लिए फलदार नहीं हो रहे हैं और आपकी जिंदगी में रूहुल कुदस के फल नहीं लग रहे हैं, तो फिर क्या करने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है कि मैं कहां पर जो है मेरी जिंदगी के अंदर क्यों फल नहीं आ रहा है, मेरी जिंदगी के अंदर क्यों चीजें रुक गई हैं, और क्यों जो है मैं हरा भरा सरसब्ज नहीं हूं, मेरी रूहानी जिंदगी सरसब्ज नहीं है। आप जानेंगे जब मैं इस बात का जिक्र करूंगा कि यीशु मसीह अंगूर का हकीकी दरख्त है।
आमेन। और उसमें कायम रहने और उसमें जिंदगी बसर करने के वसीले से आप किस तरह से जो है हमेशा की जिंदगी को और उसकी निजात को, उसकी शादमानी को, उसके फलों को अपनी जिंदगी के अंदर वो जाहिर कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अजीज बहन भाइयों, बड़े गौर से सुनिए, यीशु मसीह मैं हूं में हमारी सारी जरूरियात पूरी होती जाती हैं। हालेलुया। इसलिए मैंने जो है आई एम ग्रेट आई एम को इस अंदाज में पेश कर रहा हूं कि यीशु मसीह ज़माने हाल में, आमीन, कि यीशु मसीह इस वक्त इस ज़माने के लिए अंदर भी आई एम है, उस ज़माने में भी आई एम था और आने वाले ज़माने में भी वो आई एम है। प्रेज द लॉर्ड। और कोई शख्स जो है अभी तक किसी मुश्किल के अंदर है तो ये सारे मैसेजेस आप इसको दोहराएं, आप इसको जो है देखिए, इसको लिखिए और इसके ऊपर गौर करें ताकि आप जो है उसको जान जाएं कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे हालात, मैं किन हालात में से गुजर रहा हूँ, मैं अगर बीमारी में हूँ तो मैं क्या करूँ, अगर मैं कमी का शिकार हूँ तो मैं क्या करूँ, अगर मैं नापाकी के अंदर हूँ तो मैं क्या करूँ, और अगर मैं जो है इब्लीस के हाथों दुख पा रहा हूँ और मैं दुश्मनों के हाथ गिरा हुआ हूं तो मैं क्या करूं, अगर मैं मौत के खौफ का शिकार हूं तो मैं किधर जाऊं, मैं किसको पुकारूं, और अगर मैं कहता हूं कि मैं तन्हाई का शिकार हूं तो मैं क्या करूं, किधर जाऊं। अगर आप अपने अंदर बेचैनी, बेकरारी और गैर मुतमईन जिंदगी बसर कर रहे हैं तो फिर आपको क्या करने की जरूरत है। अजीज बहनों भाइयों, एक ही नाम है कि यीशु मसीह जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या यहाँ पर है, वो जमाना हाल में है, वो हर एक की जरूरत को पूरी करने के लिए मौजूद है। हालेलुया। और वो जो है हाजिर है और जब भी आप उसे पुकारेंगे और वो क्या होगा, वो मौजूद है। आमीन। वो कहा गया है कि वो वहां मौजूद है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो यहोवा शाम में है। इसलिए हम अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी जो है वो मुश्किल का शिकार ना रहें। आप जो है ये अगर क्राइस्ट को जान जाएंगे तो मैं आपको हकीकत बयान करता हूँ, ठीक तौर पर गीत गाना सीख जाएंगे। मैं इस बारे में इसलिए इसका जिक्र मुनासिब समझता हूँ कि हम ठीक तौर पर वर्शिप नहीं कर पाते हैं, ठीक तौर पर गीत नहीं गा पाते हैं, ठीक तौर पर उसके नाम को इज्जत और जलाल नहीं दे पा रहे हैं, हम उसके लिए सही ज़िंदगी बसर नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है? इसलिए कि हमने अभी तक आई एम को सही तौर पर नहीं जाना है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप देखिए कि किस तरीके के साथ जब आई एम का जिक्र हुआ है तो फिर हलचल पूरी जो है मिस्र के अंदर पड़ गई है। तो क्या आपकी जिंदगी के अंदर नहीं पड़ेगी? क्या आज जो समुद्र दो हिस्से नहीं हुआ? क्या जो है मन नहीं बरसा है? क्या जो है वो जो हीलिंग नहीं आई? क्या दुश्मन जो है वो मगलूब नहीं हुए हैं? हम कहाँ पर जिंदगी बसर कर रहे हैं? आमीन। इसलिए यीशु मसीह मैं हूँ में हमारी सारी जरूरियात, हमारी यह सारी कमियां जो है वो दूर हो जाएंगी और सारी जरूरियात क्या हो जाएंगी, बोलिए, पूरी हो जाएंगी। इसलिए जो है आपको मैं कहूँगा कि अगर आप यूहन्ना की इंजील पढ़ना शुरू करें, इनका जिक्र आना शुरू होगा और उसमें से बहुत सारे हवाले कोट होंगे और जो है और फिर जो है इसको लिखने की तरफ तवज्जो करें। आप जो कुछ आपने सुना है इसे लिखा करें ताकि क्या हो सके, आप जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। और कितनों ने सुना है? ठीक है, चले मैं एक दफा फिर दोहरा देता हूं। यूहन्ना ने क्या गवाही दी है? ये बातें इसलिए लिखी गई हैं ताकि कि तुम जानो कि यीशु कौन है, खुदा का बेटा मसीह है। आमीन। और उस पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी हासिल करो। कौन से 7 गवाह उसने पेश किए हैं? पहला बोलिए, हाँ जी, फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए, सामरी, फिर बोलिए, फिर बोलिए, तुमा, फिर बोलिए, 7वां नहीं, यीशु मसीह की तो अपनी लहरा से गवाही है। जन्म का अंधा जो है वो बुखारी था, उसने इन बातों का या अपनी गवाही दी है कि यीशु मसीह कौन है, बोलिए, खुदा का बेटा है। और आज जो है मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी गवाही क्या है? और ये क्वेश्चन आपके अंदर में छोड़ कर जाना चाहता हूं। ठीक है, अगर पतरस गवाही दे रहा है, अगर तूमा गवाही दे रहा है, अगर बुखारी गवाही दे रहा है, नतनील गवाही दे रहा है, जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला देखा, सुना और उसने गवाही दी है। आपने देखा,
आपने सुना है उसको, आप क्या उसके बारे में कहते हैं, आपकी क्या गवाही है। और आज जो है ये मैसेज इसके ऊपर छोड़ता हूँ। यीशु मसीह ने यह अपनी, यीशु मसीह की अपनी स्टेटमेंट है, यीशु मसीह का खुद जो है वो उसका बयान है, और जो है यूहन्ना का अपनी गवाही है, जब बहुतों की अपनी गवाही है। अजीज बहनों भाइयों, आपकी क्या गवाही है? आप यीशु मसीह के बारे में क्या गवाही रखते हैं? आमीन। आप यीशु मसीह को किस अंदाज के साथ अब से देखना शुरू करेंगे, और बेशक आप उसके ऊपर ईमान रखते हैं, लेकिन आपकी जो परसेप्शन जो है वो और ज़रा खोलिए। किस्सा देखते हैं और किस्सा सुनते हैं, और ये ना हो कान रखते हैं लेकिन सुनते नहीं, आंखें हैं तो देखते नहीं। ये यहूदी नेचर है। लेकिन अगर आप जो है मसीही नेचर को अपनी ज़िंदगी में रखते हैं तो ये मसीहों की ये नेचर ईमान वाली नेचर है। प्रेज द लॉर्ड। वो बगैर देखे ईमान लाने वाले लोग हैं। वो जो देखी हुई चीज़ों के ऊपर नहीं बल्कि किसके ऊपर यकीन करते हैं? बोलिए, अनदेखी चीजों के ऊपर बिलीव करते हैं। और आप क्राइस्ट को किस अंदाज के साथ देखते हैं? आप मसीह को के लिए क्या गवाही रखते हैं? आपकी जिंदगी के अंदर हलचल मच जानी चाहिए, आपकी जिंदगी मुतहरक हो जानी चाहिए, और आप गवाही देते फिरते रहें कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने उसे इनफरादी तौर पर या शख्सी तौर पर ये इसको जाना और समझा है कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और वो आई एम है। हालेलुया। जो मेरी सारी जरूरियात को पूरा कर सकता है, मेरी सारी कमी को दूर कर सकता है। याद रखिए कि ये फिजिकली और स्पिरिचुअली सारी नीड्स यह एक ही शख्स पूरा कर सकता है, और वो है आई एम। प्रेज द लॉर्ड। और वो कौन है? मैं हूं। इसलिए आज के बाद अपनी लाइफ को, अपनी दुआ को, अपनी यह उठने बैठने चलने फिरने को इस अंदाज में लीजिए कि मैं मसीह की गवाही रखता हूं। खुदा आप सबको बरकत दे। सिरों को झुकाएं और दुआ करें।